Hi students, welcome to my channel Diffuser Classes, and today I am starting a new chapter for you for 9th class, and this chapter is chapter 4 and chapter name is linear equations in two variables. Then let's start this chapter in the form of definitions. We have to study some of definitions for this chapter. And first definition for linear equation in two variables. What is linear equation in two variables? Linear equation in two variables का definition क्या होगा? Then an equation in the form of ax plus by plus c equals to 0, where a, b and c are real numbers and a not equal to 0 and b not equal to 0. A should not be equal to 0 and b should not be equal to 0 also. So here equation in the form of x plus by plus c equals to 0, where a, b and c are real numbers and a not equal to 0 and b not equal to 0 is called linear equation in two variables. I have written in the short form linear equation in two variables, and its example will be 2x plus 3y plus 4 equals to 0. Here the value of a is 2, value of b is 3, which is the coefficient of y, and there is coefficient of x in the form of 2, and this is 4 equals to 0. This is linear equation in two variables. Here two variables exist, x and y. So next is slope of equation. What is the slope of equation? If we are drawing the graph, then what will be its slope? Then if x plus by plus c is written in the form of y equals to mx plus c, आप कैलकुलेशन से इस स्लोप को निकाल सकते हो, और कैलकुलेशन से इस स्लोप को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको y इक्वल्स टू mx प्लस c के फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा. तो मैंने क्या लिखा कि if x plus by plus c equals to 0 is written in the form of y equals to mx plus c, then m is known as slope of the equation. Okay. Then as x plus by plus c equals to 0, and then after by equals to minus x minus c, by को आप कांस्टेंट रखोगे और x और c को राइट साइड में भेज दोगे तो माइनस एक्स माइनस सी हो गया. देन y इक्वल्स टू माइनस a बाई b, b जाके डिवाइड होगा दोनों साइड में, माइनस a बाई b x माइनस c बाई b इस फॉर्म में आ गया. अब इसको इक्वेट करते हैं. वी हैव टू इक्वेट y इक्वल्स टू माइनस a बाई b x माइनस c बाई b, which we got in mx plus c as y equals to minus a by bx minus c by b equals to mx plus c. तो जब इक्वेट दोनों को करते हैं तो यहाँ पे m का जो वैल्यू आता है वो माइनस a by b आता है, बिकॉज इट इज द कोफिशिएंट ऑफ x and there also coefficient of x is m. Then the value of m is minus a by b. This is the slope of an equation. You have got the formula for m, और m को हम लोग स्लोप बोलते हैं, और स्लोप का वैल्यू आपने फाइंड कर लिया माइनस ए बाई बी के फॉर्म में. स्लोप ऑफ एन इक्वेशन. नेक्स्ट इज सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ एनी इक्वेशन? एंड हियर in class 9 you have to study linear equation in two variables, and for two variables you have to find the paired value of x and y. So what is the solution of linear equation in two variables? If the paired value of x and y satisfy the linear equation x plus by plus c equals to 0, then that paired value is known as solution of equation. तो x और y का जो वैल्यू हम लोग इसमें फाइंड करेंगे, वो x और y का जो पेयर्ड वैल्यू होगा वही सॉल्यूशन होता है. और सॉल्यूशन में केवल x का या y का वैल्यू नहीं होता है, दोनों का वैल्यू होता है. x और y दोनों का पेयर्ड वैल्यू होता है. as let
x equals to alpha and b equals to beta. This is alpha. X equals to alpha and b equals to beta. Satisfy the equation x plus by plus c equals to 0. And let's know about alpha and beta. They are Greek letters, as we have studied A, B, C, D, just like that, alpha, beta, gamma, and so on. So x equals to alpha and b equals to beta, we satisfy the equation. मान लेते हैं कि x equals to alpha और b equals to beta satisfy करता है equation को. जो equation है x plus by plus c equals to 0, linear equation in two variables. Then if they satisfy the equation, then we can put the value of x and y in the form of alpha and beta. Okay, then a alpha plus b beta plus c equals to 0. x के जगह पे y के जगह पे अल्फा और बीटा को मैंने पुट कर दिया, तो a अल्फा प्लस b बीटा प्लस c इक्वल्स टू 0 होगा. Then next point is, for any linear equation in two variables, if you are putting the value of x, then you can get the value of y in every condition. तो इसके लिए हम लोग कह सकते हैं कि जब भी हम लोग x का वैल्यू पुट करेंगे तो y का वैल्यू आता ही रहेगा. तो ये कहा जा सकता है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जब एक इक्वेशन दिया होता है तो उसका वैल्यू जो होता है, उसका सॉल्यूशन जो होता है इनफाइनाइट होता है. इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस फाइंड किया जा सकते हैं. इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस मतलब उसका अंत ही नहीं है. जब तक नंबर है, जहां तक नंबर है वहां तक जो है आप सॉल्यूशन फाइंड करते. जितना नंबर आप पुट करोगे उतना नंबर आता जाएगा. x का वैल्यू पुट करोगे y का वैल्यू आता जाएगा. तो any linear equation has infinitely many solutions. I have written there. Any linear equation in two variables has infinitely many solutions. Then let's erase all of them. Okay, next point is, how can you draw the graph of linear equation in two variables? Linear equation in two variables का ग्राफ आप कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? तो इसका मेथड होता है, और मेथड फॉर ड्राइंग ग्राफ ऑफ linear equation, and that linear equation in the form of ax plus by plus c equals to 0. What is the method for that? Then we can take an example of ourselves. So I am taking an example as 2x plus 3y plus 4 equals to 0 in the form of x plus by plus c equals to 0. Then let's begin. Imply that यहाँ पे इसको किस फॉर्म में फाइंड करना है, तो y equals to mx plus c में चेंज कर देना है. बस आपको y equals to mx plus c में चेंज कर देना है, और आप जब इस फॉर्म में आप ला दोगे तो x का वैल्यू पुट करोगे, y का वैल्यू आता जाएगा, और आपको मात्र दो सॉल्यूशन लाना चाहिए. तो एटलीस्ट दो सॉल्यूशन आता है, और उससे ज्यादा भी ला सकते हैं, लेकिन ओके स्टूडेंट्स, नाउ दिस इज मेथड फॉर ड्राइंग ग्राफ ऑफ linear equation x plus by plus c equals to 0, and I have written one example for you for drawing a graph 2x plus 3y plus 4 equals to 0. And it will be changed in the form of y equals to mx plus c. And this is the method for drawing. So, in the form of y equals to mx plus c, first we have to put the 3y as constant, and 2x and 4 will be sent at right side. तो 2x को जब राइट साइड में आप सेंड करते हो तो ये हो जाएगा -2x, और 4 को राइट साइड में सेंड करोगे तो हो जाएगा -4. ओके, तो यहाँ पे जो 3y है इसका 3 जाके डिवाइड होता है इसमें
-2/3 हो जाएगा और फिर -4/3 हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, इसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बस ये समझना है कि 3y को यहाँ पे कांस्टेंट रखना है, बिकॉज यू हैव टू चेंज इन द फॉर्म ऑफ y इक्वल्स टू mx प्लस c, y should be constant at left side and you find the value of y in the form of x. So 3y equals to -2x minus 4, I have changed, and here y equals to 3 will be divided in first and 3 will be divided in the second also. Now we have to take the value of x and find the value of y. So I have taken first value of x as 1, x equals to 1, then y equals to -2/3 into 1 -4/3, and 1 will be multiplied to -2/3 -4/3. So there should be LCM of 3 and 3 is 3, and 3 divides 3 will be 1, as percent 1 multiplied to 2 -2, and 3 will divide 3, that will be 1, and 1 multiplied to 4, that will be 4. -2 -4 -6/3, and you are cutting them, so you can get -2. आप इसको कटा देते हो तो ये बन जाता है -2. Next x equals to 2.5. अगर 2.5 करते हैं, then y equals to -2/3 into 2.5. Okay, 2.5 and minus 4/3 will be there equals to, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 से अगर 2 में, तो आ जाएगा ये 5 -5 -4/3, that is -9/3, and by cutting them it will be -3 in the form of -3. इसको डिवाइड करने के बाद जो है, जो आपको मिल रहा है -5 -4, 2.5 से आपने 2 में मल्टीप्लाई किया, क्या मिला -5 और -4/3. तो इसको जब हम कट करते हैं, मतलब डिवाइड करते हैं, तो -9/3 होता है और डिवाइड करने के बाद -3 आ जाता है. Then you have got the value of x and y in paired form. There is x, there is y. We have got two solutions. The value of x, that is 1, and the value of y is -2. Here the value of x is 2.5 and value of y is -3. Now draw the graph here. दिखाई दे रहा होगा सबको? One, 2, 3, 4, 5. There is x, there is x dash, y, there y dash, there is origin. And in left side -1, -2, -3, -4. There 1, 2, 3, 4. There -1, -2, -3, -4. This is कार्टेशियन प्लेन. कार्टेशियन प्लेन में इसको हम लोग ड्रॉ करते हैं और एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में ड्रॉ करेंगे इस इक्वेशन का जो आपने चूज किया है एग्जांपल के लिए. तो x और y का जो पेयर्ड वैल्यू है उसको मैंने पॉइंट करना है पहले. तो 1 और -2 को मुझे पॉइंट करना है. तो 1 और -2 का मतलब 1 is the value of x and -2 is the value of y. So check where is 1 and -2. तो 1 x का वैल्यू 1 यहाँ पे है और -2 यहाँ पे है, तो मैं इसको पॉइंट कर दिया 1 के सामने जो कि x का वैल्यू है और -2 जो कि y का वैल्यू है, मैंने उसको पॉइंट कर दिया. एज वी हैव गॉट द प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट्स इन 8th क्लास. Plotting of points you have studied already. So this is plotting of points only. So there is 2.5. This is the value of x, and you are getting the value of y as -3. So 2.5 और -3 को भी प्लॉट कर दीजिए.
तो 2.5 कहाँ पे आएगा? 2.5 और 2 और 3 के एकदम मिडिल में आएगा यहाँ पे। तो इसके सामने 2.5 तो आपका आ रहा है -3, तो -3 के सामने यहाँ पे मारेंगे, बिल्कुल इसके सामने आ रहा है 2.5 के सामने और -3 के सामने आएगा। ये तो बोर्ड पे बन रहा है, थोड़ा सा क्लियर नहीं होगा उतना, लेकिन जब आप ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करोगे और सिमिलर लेंथ का यूज करोगे, स्केल से उसको ड्रॉ करोगे, ठीक है, और नीटली जब उसको ड्रॉ कर दोगे तो एकदम समझ में आ जाएगा कि कैसे इसको बनाते हैं और कितना सिंपली ये बनता है, बहुत ज्यादा हार्ड है नहीं। तो ये दोनों पॉइंट को मिलाना है और इस दोनों पॉइंट को जब हम मिला देते हैं तो कंप्लीट एक स्ट्रेट लाइन बनता है, कंप्लीट एक स्ट्रेट लाइन बनता है। और इस दोनों पॉइंट का हम लोग नेमिंग कर देंगे, ये आता है 1 and -2 and there is 2.5 and -3 और दोनों को मिला देने के बाद आपका एक स्ट्रेट लाइन बन जाता है। आप इस लाइन को और बढ़ा सकते हो। लाइन इज द स्ट्रेट ज्योमेट्रिकल फिगर व्हिच कैन बी एक्सटेंडेड इन बोथ डायरेक्शंस, आप जानते हो। तो इस लाइन को और भी बढ़ा सकते हो, जितना बन के उतना बढ़ा सकते हो। मैंने यहाँ तक छोड़ दिया है, 2 पॉइंट को अरेंज करने के लिए मैंने छोड़ दिया, बस हो गया। अब इसको और भी आगे एक्सटेंड कर सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आपका ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y + 4 का वैल्यू हो गया, ये जो लाइन आया स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में। तो स्टूडेंट्स, फॉर टुडे ओनली दिस मच एंड फॉर द नेक्स्ट प्लीज वेट माय न्यू वीडियो। तो आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लेंगे और उसको शेयर भी करेंगे अपने फ्रेंड के साथ। और अभी बहुत ही टफ सिचुएशन है और उस टफ सिचुएशन में भी आपको पढ़ाई करते रहना है और पढ़ाई कराने की जिम्मेवारी हम लोग की है और हम लोग उसमें लगे हुए हैं। तो इसलिए सिचुएशन कोई भी हो उसको एंजॉय करना चाहिए। आप अपने काम को कभी बंद मत करिए और हम लोग भी अपने काम को कभी बंद नहीं कर रहे हैं, लगे हुए हैं अपने मिशन में। तो आप लोग भी अपने मिशन में लगे रहिए, पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ये हम लोग की दुआ भी है आपके लिए। और कभी भी जीवन में हार नहीं मानना चाहिए। होता है ऐसे सिचुएशंस आते हैं और केवल एक आदमी के लिए तो है नहीं, पूरी दुनिया के लिए है। तो इस सिचुएशन में हम लोगों को बस धैर्य काम करके रखना है, पेशेंस बना कर रखना है और घबराना नहीं है। बस पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।